بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ العالمین. Global energy crisis, which is there and which is going to increase in the coming days, particularly with reference to American pressure on the OPEC and the plus 10 other countries to increase the production of oil. And these OPEC countries and plus other 10 countries, instead of increasing the production of oil, they announced to decrease the production by 2 million barrels per day. And recently, they held a meeting in Vienna, Austria, where there is a headquarter of OPEC. اب نیوز اس میں یہ ہے کہ امریکہ جس کا مڈل ایسٹ پر پرٹیکولرلی اوپیک پر بہت انفلوئنس تھا پاسٹ میں، پہلی دفعہ اس کو ریفیوزل ملی. نہ صرف ریفیوزل ملی بلکہ ڈیفائنس ملی کہ آپ ہمیں پیٹرولیم کی پروڈکشن کو زیادہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، ہم اس کو ریڈیوس کرتے ہیں تاکہ تیل کی قیمتیں بڑھیں اور ہماری اکانومی اسٹرانگ ہو. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس ریزن کیا ہے، وائی یو آر گوئنگ ٹو ڈیکریز دا پروڈکشن، تو کہنے لگے جی کہ ورلڈ ویکننگ اکانومی ایک پوائنٹ، نمبر 2 انکریز ان دا انٹرسٹ ریٹس. امیڈیٹلی جب انہوں نے اناؤنس کیا تو اس کا پہلا امپیکٹ یہ ہوا کہ دنیا میں آئل کی قیمتیں 1.7% انکریز ہوئی. یہ ایک انٹرنیشنل بینچ مارک ہے جسے ہم برنٹ کروڈ بینچ مارک کہتے ہیں. اس کے مطابق یہ 1.7% انکریز ہوئی اور جو اس وقت ریٹ ہے وہ $93.29 بیرل ہو گیا. اس میں فلکچویشن آتی رہی ہیں ریسنٹلی. اگر آپ جنوری جو 2022 کا سٹارٹ تھا، اس کا ریٹ تھا $79 پر بیرل. پھر یہ مارچ میں کلائمیکس پر گیا، $127 پر چلا گیا اور اس کے بعد پھر نیچے آیا اور اب پھر یہ اوپر کو جانے لگا. اب ہم بات کریں گے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اور امریکہ کے کنسرنز کیا تھے. امریکہ نے اوپیک کو کیوں کہا؟ اوپیک جو ہے یہ آئل اینڈ پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز یہ کا کارٹل ہے یا ایک الائنس ہے. اس کے 13 ممبرز ہیں. جو ٹاپ 5 ہیں وہ سب سے بڑے جو پروڈیوسر آف آئل ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو ہے نا اوور آل اراؤنڈ 30 ملین بیرل پر ڈے پروڈیوس کرتے ہیں یہ اوپیک کے 30، اور 30 میں سے 1/3 جو ہے اکیلا سعودی عربیہ پروڈیوس کرتا ہے. تو سعودی عربیہ از دا لارجسٹ پروڈیوسر آف آئل ناؤ ڈیز. اس میں ایگزیکٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں ایگزیکٹ فگرز میں تو ٹوٹل جو ڈیلی پروڈکشن ہے دیٹ از 29.7 ملین بیرل. اب اس میں سعودی عربیہ کی کنٹریبیوشن ہے 10.9، عراق کی ہے 4.5 دوسرے نمبر پر، تیسرے پر ہے یو اے ای 3.2، کویت is at 4th number 2.8، ایران is 2.6. باقی سارے اس سے کم ہیں. جو ادر 5 لیس امپورٹنٹ ہے کمپیریٹیولی، گولا ہے، لیبیا ہے، نائجیریا، الجیریا اور وینزویلا. جو وینزویلا 10th نمبر پر ہے وہ 0.7 ملین بیرل پر ڈے اس کی پروڈکشن ہے. اس کے علاوہ 3 اور ہیں. اوپیک پلس اس لیے کہتے ہیں کہ there are 10 other countries which are under Russian influence. اب یہ جو ایگریمنٹ ہوا ان کا یہ رشیا سے مل کر ہوا ہے. جو کلچر سمجھنے کے لیے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے کیوں کہا کہ آپ اس کی پروڈکشن بڑھائیں. وائی؟ امریکہ نے 2 وجہ سے کہا. ایک تو وجہ یہ کہ خود مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے، اور امریکہ میں اس وقت گیسولین کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. تو یہ پہلی دفعہ پرائس ہائیک ہوئی. وہاں پروڈکشن اگر بڑھ جائے گی، انٹرنیشنل ریٹ کم ہوگا تو پھر امریکہ میں بھی گیسولین کا ریٹ کم ہوگا. ایک وجہ امریکہ اکنامک کرائسس میں ہے تھوڑا. وہاں انفلیشن ریٹ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا یہ 9% کو ہٹ کر گیا اور یہ میکسیمم تھا
ड्यूरिंग द लास्ट 40 years, और अब बड़ी मुश्किल से 9 से वो 8 पर आए हैं। इसका भी ओवरऑल इम्पैक्ट है महंगाई का, सारी कमोडिटीज वहां महंगी हुई हैं। और ये मैं बताऊं कि एनर्जी ऐसी चीज है, इसका इम्पैक्ट तमाम चीजों पर पड़ता है। तो उसने कहा कि ओपेक जो है, इसको कहा जाए कि अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करे ताकि प्राइसेस स्टेबल हो या नीचे आए। नंबर 2, उसने कहा कि अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये रूस को हेल्प आउट कर रही हैं, उसके रेवेन्यू में इजाफा कर रही हैं, और वो यूक्रेन की जंग में ज्यादा एक्टिव और ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड लेवल पर जाएगा। और रूस की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए जरूरी है कि दुनिया में एनर्जी की कीमतें नीचे आए। तो अगर ये प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ओपेक, तो फिर क्या होगा, एनर्जी की कीमतें नीचे आएंगी और अकॉर्डिंगली रशियन जो रेवेन्यू है वो नीचे आएगा, इकोनॉमिकली वीक होगा, और हमारे लिए यूक्रेन की जंग जीतना आसान हो जाएगी। अब जब इन्होंने प्रोडक्शन डिक्रीज कर दी, अनाउंसमेंट की अभी, तो अमेरिका नाराज हो गया। अमेरिका ने कहा पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया को कि यू आर हेल्पिंग आउट रशिया, आपकी पॉलिसी में हमें ड्रास्टिक शिफ्ट नजर आता है, और इसमें हमें स्मेल होता है कि पॉलिटिकली यू आर अलाइनिंग विद परहैप्स रशिया। सऊदी अरेबिया का जो जवाब था वो ये था कि दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल मूव, दिस इज प्योरली एन इकोनॉमिक मूव। हम इसमें कोई सियासत नहीं खेलना चाहते, या यूक्रेन जंग में आपके लिए कोई मसाइल पैदा करने के लिए हमारा कोई ऐसा कंसिडर्ड व्यू नहीं है। हमारी अपनी इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जिस तरह आपके इंटरेस्ट हैं। अब असरात क्या होंगे जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी? ये आप देख लीजिएगा कि नवंबर में ऑयल की प्राइसेस और बढ़ेंगी। जब और बढ़ेंगी, रिजल्ट क्या होता है, जब कोई भी चीज एक्सपेंसिव हो जाती है तो फिर उसकी कंजम्पशन कम होती है। जब कंजम्पशन कम होगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है दुनिया में, तो फिर क्या होगा कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। लोग चीज कम खरीदेंगे, इवन एनर्जी को कम कंज्यूम करेंगे। जब एनर्जी महंगी है तो जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं फैक्ट्रीज में, वो सारी की सारी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। एक्सपेंसिव चीज का एकदम इम्पैक्ट ये होता है कि उसकी डिमांड में कमी आती है। जब डिमांड कम होगी तो साफ ज़ाहिर है चीजें अकॉर्डिंगली उतनी कम प्रोड्यूस होंगी। जब कम प्रोड्यूस होगी कि इट मीन्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सारी की सारी नीचे आ जाएगी। अब एक तरफ इन्फ्लेशन हो गई, दूसरी तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। और ये स्टैगफ्लेशन जो है ये इकोनॉमिक रिसेशन की वर्स्ट कंडीशन है। तो वर्ल्ड इज मूविंग नाउ टूवर्ड्स स्टैगफ्लेशन। ऑलरेडी वर्ल्ड इज इन इकोनॉमिक क्राइसिस, इस वक्त भी इकोनॉमिक रिसेशन में है। देखना ये है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर में ये इकोनॉमिक रिसेशन और स्टैगफ्लेशन सिचुएशन ये वर्स होगी। अकॉर्डिंगली कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जो कि अपनी पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट की ज्यादातर जो या एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है, इसका जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ जाएगा। ऑलरेडी डॉलर स्टार्व्ड है हम, मजीद डॉलर हमें दरकार होंगे। तो पाकिस्तान भी फ्यूचर में ज्यादा क्रिटिकल फेज में दाखिल होने जा रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि आए दिन इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, जिससे फिर और महंगाई होने के इम्कानात हैं। लाइक वाइज डॉलर का जो रेट है वो भी नीचे आता हुआ नजर नहीं आता। तो बात जो हमने करनी है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, दो तरीके से। एक बड़ा शिफ्ट जो पॉलिटिकल एनालिस्ट देखते रहते हैं, बड़ा शिफ्ट हुआ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में। वहाँ सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, यूएई, इनों का नो कहना यूएसए को, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो इसका थोड़ा गुस्सा मनाया। प्रेसिडेंट जो बाइडेन के अल्फाज हैं कि फिर सऊदी अरेबिया को थ्रेट किया, आपको इसके कंसिक्वेंसेस
बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये जो एक, मैं कहता हूँ बड़े अरसे बाद एक सेटबैक है अमेरिकन पॉलिसी को, कि यूरोपियन अलाइज जो थे वो भी क्राइसिस में है, इसलिए कि यूरोप की ज्यादातर एनर्जी की रिलायंस जो थी वो सारी रशिया पर थी। यूक्रेन की जंग के बाद एकदम रशिया तो कट नहीं कर रहा था, वो तो अपनी गैस की सप्लाई जारी रखे हुए था, लेकिन अमेरिका ने इनको कहा, यूरोपियन अलाइज को, कि रशिया को इकोनॉमिकली सेटबैक पहुंचाने के लिए आप खुद उससे गैस लेना बंद कर दें। ना सिर्फ उसने कहा, बल्कि रशिया ने भी कहा कि इनको पेनलाइज, क्योंकि ये सारे के सारे नेटो के मेंबर हैं और हेल्प आउट कर रहे हैं, यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है उसको ये असला भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, तो उसी वजह से वो रूस के साथ जंग कर रहे हैं और रूस को बड़ा डिफेंसिव आजकल बनाया हुआ है, और कुछ इलाके जो रूस ने कैप्चर किए थे उनको उन्होंने वापस भी ले लिया है। तो रूस ने भी अपनी जो सप्लाई थी वो कम की। तो गोया कि एक ऐसा काम था कि ये भी कम करना चाहता था कि वो स्क्वीज करे इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, पर्टिकुलरली सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो उनको पेनलाइज करने के लिए इधर रशिया चाहता था, और प्लस अमेरिका चाहता था कि रशिया की इकोनॉमी मुतासर करनी है तो भाई आप इससे ना खरीदें। तो गोया कि अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो अब रशियन सप्लाई है that has become very negligible now. अब from where to make up the deficiency? अब डेफिशिएंसी के लिए था यही मिडिल ईस्ट या यही गल्फ एरिया या ये ओपेक के जो कंट्रीज थे कि ये सप्लाई करें एनर्जी टू द यूरोप। वो सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, दे करेंगे, बट एट द इंक्रीज्ड प्राइस। जैसे इन्होंने प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, तो प्राइस जब इंक्रीज होगी तो ये उनकी इकोनॉमीज को खराब करेगी चीज। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक जो यूके है ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस में से गुजर रहा है। जब से ब्रेक्सिट हुआ है, ब्रेक्सिट भी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हुआ, और ये इसलिए हुआ था ताकि हम अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेंगे अगर यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गए। तो उस वक्त भी मेरी एक वीलॉग था जब मैंने कहा था कि खा ये यूरोपियन यूनियन में रहें या ये यूरोपियन यूनियन को लीव कर दें, इनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम दुरुस्त नहीं होंगे। उसकी रीजन मैंने उसी वीलॉग में मौजूद है, और वही बात हुई। इतना वक्त गुजर गया है, अभी तक यूके के इकोनॉमिक मसाइल ठीक नहीं हुए, बल्कि यूरोपियन अदर कंट्री जो हैं उनके भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं। इस तरह यानी अभी तक यूं लगता है कि सारी वर्ल्ड एनर्जी डिपेंडेंट है। बेशक जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन फॉसिल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उसकी तरफ काफी ट्रेंड है या एम्फेसिस है, जैसे सोलर है, विंड एनर्जी है, टाइडल है, हाइडल है, या इलेक्ट्रिक कार्स हैं। ये चीजें इतना कामयाब नहीं हो सकी, या इसमें बहुत वक्त लगेगा टू रिप्लेस द फॉसिल फ्यूल्स। तो अभी तक जो है ग्राउंड रियलिटीज वो ये हैं, द होल ग्लोब इज स्टैंडिंग ऑन द फॉसिल फ्यूल।